कोई बात नहीं मुस्कान, इट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट। Okay, so let's start with the publicity. What is the meaning of publicity? Then we'll complete its topic. So what is the meaning of publicity? Publicity is something which is non-paid form. मतलब कभी भी उसको हम paid communication नहीं होता है. हमेशा जो company है, the company is always use press conference and all. But that is not like the advertisement. We don't need to pay the hefty amount for doing the publicity. Publicity is something which is beyond the control of the company. I already repeated it so many times, right? So publicity is the better way for so many companies to promote their product. You always see that whenever the film is launched, we see so many publicity conferences are done. That is a part of publicity, the press conference and all that all are the part of the publicity. Publicity is like the advertisement only. That is basically covering the mass media, mass consumer, sorry, mass consumer. But the differences is that the advertisement is designed and everything is already mentioned and that is in the paid form. But the publicity is not in the paid form. We don't need to pay anything, but we can arrange the things like we can arrange the press conference and all. But as advertisement, this is not the, we can say that this is not in the, we can say इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इन पब्लिसिटी. तो इसमें लिखिए पब्लिसिटी इज ऑल्सो लाइक एडवर्टीजमेंट. पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन. लिखिए पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ वे ऑफ मास कम्युनिकेशन. Publicity is also a way of mass communication. Mass communication. It is a non, it is a not, it is not a paid form of mass communication. Like advertisement, it is not a paid form of mass communication. It is not a paid form for a mass communication, paid form of a mass communication that involves getting favorable responses, that involves getting favorable responses of buyers by placing commercially significant news in mass media. It is a non-paid form of mass communication that involves getting favorable responses of buyers by placing commercially significant news in mass media. ठीक है. So publicity is non-paid form that is for covering the mass consumer. So many consumer we need to cover. And what we can do, we'll get the favorable response of the product. Like for example, if this bottle is sold by some companies, then the company, what they can do, that they will get the favorable responses, feedback about your product, and that will be basically spread in the whole, बोल सकते हैं whole market, and that can be spread in the whole area. ठीक है. So this is a kind of thing. Publicity जो है ये एक एडवर्टीजमेंट की तरह इसके लिए डिजाइनिंग करना, स्टेटमेंट्स बनवाना, सोशल मीडिया को यूज करके उसको प्रॉपरली पोस्ट करना, इतना ज्यादा इसमें नहीं है. दिस इज समथिंग विच इज स्प्रेड ऑटोमेटिकली, एक अपनी तरफ से स्प्रेड हो जाता है. बट हाँ, समटाइम some companies are using press conference and all for basically doing the publicity. ठीक है. तो यहाँ पर जो पब्लिसिटी है ये कोई भी तरीके का प्रमोशनल कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट वेयर द मैसेज इज नॉट पेड. मैसेजेस इज नेवर पेड. कैसा नहीं कि पैसा दे के आप मैसेजेस करा रहे हो, नॉट इन दैट वे, बट फॉर द बेनिफिटिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इसका एक डेफिनेशन है, आई थिंक बुक में डेफिनेशन गिवन नहीं है, तो यू कैन राइट द डेफिनेशन एज वेल. द डेफिनेशन इज गिवन बाय विलियम जे स्टैंटन. S-T-A-N-T-O-N, Stanton. William J. Stanton. What he describes, what he defines, sorry, क्या उन्होंने define किया है? Publicity is any promotional communication. Publicity is any promotional communication. Publicity is any promotional communication. Publicity is any promotional communication regarding an organization and slash or its
product where the message is not paid, where the message is not paid for by the organization, benefiting from it, okay. So what William J. Stanton basically describe about the publicity, that publicity is any promotional communication regarding an organization, यानी organization के regarding an organization and or its product, यानी कि publicity can done for the brand as well. It doesn't matter कि this bottle only, but the brand of this bottle means that is for the organization, that is for the brand, that is for the product. ठीक है, तो ये लिखना नहीं है, definition will be same whatever is described by William J. Stanton. तो यहाँ लिखिए regarding an organization and or its product where the message is not paid, where the message is not paid for by the organization, benefiting from it. See, like in advertisement, everything is designed. Either the statement, the words the people are using in the advertisement, everything is designed. But in the publicity, जो message है वो कभी design नहीं होता, कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हो सकता है, प्रोडक्ट के बारे में भी हो सकता है, ब्रांड के बारे में भी हो सकता है. सो पब्लिसिटी जो है एक ट्रेडिशनल फॉर्म है एक पब्लिक रिलेशन का. ऑलवेज रिमेंबर दैट द पब्लिसिटी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, बट वो सेपरेट करके दिया हुआ है, बट द पब्लिसिटी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन. ठीक है, पब्लिसिटी जो होता है बेसिकली कम्स फ्रॉम, पब्लिसिटी कहाँ से आता है, तो पब्लिसिटी कम्स फ्रॉम द रिपोर्टर्स, द कॉमर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट जो होते हैं, दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ डूइंग दिस पब्लिसिटी. तो ये पब्लिसिटी कौन करते हैं, आपके मीडिया के लोग, जैसे हो गए रिपोर्टर्स वगैरह हो गए, जर्नलिस्ट वगैरह हो गए. जैसे मान लीजिए कि अभी मैगी के बारे में पब्लिसिटी कितना निगेटिव हुआ था, है ना, हुआ था, आप लोग सबने सुना होगा, देखा होगा. So how this came in the news that this particular product is not good for the health. So इसको कहते हैं पब्लिसिटी. यहाँ पर जो मीडिया है वो प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाएगी पर्टिकुलरली ब्रांड के प्रोडक्ट या ब्रांड को डिटरमाइन करने के लिए. लाइक दिस प्रोडक्ट इज हार्मफुल, दिस प्रोडक्ट इज गुड. सो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है पब्लिसिटी में, किसका होता है, बेसिकली आपके मीडिया में रिपोर्टर्स का, जर्नलिस्ट का. ठीक है, ये दोनों जो होते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह कौन होते हैं, जो रिपोर्ट वगैरह लेना, फिर जर्नल वगैरह में जो आर्टिकल्स वगैरह आना, ये सब जर्नलिस्ट हो गए, रिपोर्टर्स, कॉमर्नलिस्ट. तो ये लोग का सबसे ज्यादा काम या फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है पब्लिसिटी में. तो इसमें लिखिए पब्लिसिटी comes from reporters, publicity comes from reporters, journalist, ठीक है, जर्नलिस्ट ये कहां से आता है, बेसिकली रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के द्वारा. आगे लिखिए it involves giving public speeches, it involves giving public speeches, giving interviews, it involves publicity क्या involve कर रहा है, getting public speeches, giving interviews, conducting seminars, charitable donation, inauguration by film actor, cricketer, politician, inauguration by film actor, cricketer, politician, और popular personalities, stage show. तो यहाँ पर पब्लिसिटी देखो कैसे हो रहा है, मतलब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली पब्लिक स्पीचेस वगैरह देना. कई बार कोई प्रोडक्ट को यूज करने के बाद रिव्यूज जो होते हैं, पब्लिक जो है, रिपोर्टर पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिव्यू यू हैव अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो वो चीज पब्लिक स्पीचेस वगैरह में जब मीडिया उसको कवर करती है, तब कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी हो सकता है. ठीक है, अगर आपने कोई बेसिकली प्रोडक्ट नया लॉन्च किया और उसके लॉन्चिंग पार्टी में अगर आपने सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व किया, इनॉग्रेशन उनसे करवाया, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पब्लिसिटी. वेयर समथिंग इज गॉन थ्रू न्यूज और रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट आर इन्वॉल्व,
एंड दैट इज इन अ फॉर्मल मीडिया, कह सकते हैं फॉर्मल मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर बेसिकली स्प्रेड हो रहा है यहाँ पर, तो दैट इज अ पब्लिसिटी, ठीक है। बट पब्लिसिटी में कई बार रूमर्स भी जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट दैट विल बी विल कवर इट इन डिसएडवांटेजेस। सो पब्लिसिटी में क्या क्या चीजें होती है, जैसे पब्लिक स्पीचेस वगैरह देना, अबाउट द प्रोडक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, कंडक्ट करना सेमिनार्स वगैरह, ठीक है। फिर इनॉग्रेशन के टाइम पे आपने किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके मार्केटिंग को, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में बेसिकली पॉजिटिव वे में स्प्रेड करते हैं, लाइक दिस प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल एंड ऑल। मतलब एक तरीके से ये दोनों तरीके से होता है, निगेटिव भी होता है, बट जो मेन रीजन है पब्लिसिटी को हम बेनिफिशियल तब मानेंगे जब बेसिकली उसका जो प्रमोशन और प्रोडक्ट और ब्रांड का एक गुड इमेज और एक गुडविल इंक्रीज करने के लिए। आगे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है पब्लिक बेसिकली पब्लिसिटी के, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिसिटी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो लिखिए पब्लिसिटी इन्वॉल्व गेटिंग, पब्लिसिटी इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग या गेटिंग ही लिख लो, पब्लिसिटी इन्वॉल्व गेटिंग favorable presentation about company or company's offer, about company and company's offer upon radio, television and or stage, ठीक है, or stage that is not paid for by the sponsor. Publicity involves obtaining favorable presentation about the company or company's offer upon radio, television, or stage that is not paid for by the sponsor. Like in advertisement, we require the identified sponsor for doing advertisement, right? But in this case, in this publicity, we don't require any basically sponsors. एंड व्हाट वी कैन डू, मतलब किसी सेलिब्रिटी को आपने बेसिकली स्पीच दे रहे हैं अबाउट योर प्रोडक्ट, दे आर टेलिंग अबाउट योर ब्रांड, टेलिंग अबाउट योर कंपनी, ठीक है। सो दीज ऑल आर बिकम द पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी में बेसिकली एक फेवरेबल प्रेजेंटेशन वगैरह, स्पीच वगैरह आप किसके बारे में दे सकते हैं, कंपनी के बारे में। नेक्स्ट आगे लिखिए इट इज द नॉन पेड फॉर्म, इट इज द नॉन पेड फॉर्म ऑफ मार्केट प्रमोशन, लाइक उसमें हमें एडवर्टीजमेंट एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती थी, बट पब्लिसिटी में ऐसा कोई हमें स्पॉन्सर्स, एडवर्टीजमेंट एजेंसी वगैरह की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज नॉन पेड फॉर्म ऑफ मार्केट प्रमोशन, इट इज नॉन पेड फॉर्म ऑफ मार्केट प्रमोशन, नॉन पेड फॉर्म ऑफ मार्केट प्रमोशन, but somehow means little bit amount or we can say कि several indirect costs are basically involved in the publicity. ऐसे नॉन पेड फॉर्म है, बट कई कई बार पब्लिसिटी को अरेंज करने के लिए और पब्लिक बोल सकते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अरेंज करने के लिए मे बी आपको इसमें थोड़ा बहुत कॉस्ट इनकर करना पड़े, बट एज सच लाइक एडवर्टीजमेंट वी डोंट नीड टू पे हेफ्टी अमाउंट, राइट। सो इसमें इट इज नॉन पेड फॉर्म ऑफ द मार्केट प्रमोशन। नेक्स्ट अब पब्लिसिटी कब तक यूज कर सकती है कोई भी कंपनी, व्हेन पब्लिसिटी इज यूज्ड बाय द कंपनी, व्हेन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब कोई नया प्रोडक्ट निकले, लॉन्च हो, ठीक है, या फिर कुछ प्रोडक्ट जो है जो बेसिकली किसी ने कुछ सीएसआर या फिर बोल सकते सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया हो, लाइक कुछ एनवायरमेंट को सेफ्टी के लिए किया हो, तो ऐसे केस में भी कई बार एक पॉजिटिव वे में आपके कंपनी का गुडविल जो है क्रिएट होता है, इमेज बढ़ता है, ठीक है। सो इट मे इंक्लूड, थर्ड लिखिए, इट मे इंक्लूड प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इट मे इंक्लूड प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, pollution control effort which is something which is contributing to the positively to the society। तो या फिर कोई कंपनी ऐसी हो जो बेसिकली सोसाइटी के लिए पॉजिटिवली या फिर एनवायरमेंट के लिए पॉजिटिवली काम कर रहा हो, ठीक है। तो इट मे इंक्लूड प्रमोशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, pollution control effort, pollution control effort, special achievement of employees, special achievement of employees. Google is famous because of his CEO, right? He is famous for his CEO or not? है ना? Sundar Pichai, right? So basically some special achievement of employees. If your employees did something very good, right? In that case also we can use publicity. And it is also used for increasing sales, increasing sales.
and it is also, publicity is also used for basically giving information about the new policies. If it is basically कहीं भी किसी कंपनी में कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसे केस में भी आप पब्लिसिटी को यूज कर सकते हो. So publicity is not only for increasing sale, but it is overall for doing marketing basically. सिर्फ और सिर्फ सेल्स, जैसे सेल्स प्रमोशन का जो मेन मकसद ज्यादातर क्या है, 90% सेल्स बढ़ाना, समझ रहे हो. बट यहाँ पर ये टोटल मार्केटिंग अप्रोच, मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पूरा सब चीज को बैलेंस करके चल रहा है. आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में पब्लिसिटी हो रहा है, लोग प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है, गुडविल इंक्रीज हो रहा है. साथ साथ में आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड हर एक न्यूज, जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉयज से रिलेटेड न्यूज आपको दिख जाता होगा न्यूज़पेपर में, राइट. So this is covering the whole thing. It is also covering the organizational structure. It is covering the organizational environment. It is including the sales work. It is including the all type of speeches, all type of decisions, all type of policies. So it is also a way of informing the consumer about the new policies and giving the new information about the company. Clear हो गया? What is the meaning of publicity? समझ में आ गया क्या होता है publicity basically? Fourth point लिखिए. Fourth point लिखिए. Many publicity can be carried via newspaper. Mostly publicity or mainly publicity can be carried via newspaper, magazines, radio or television. अच्छा एक चीज बताना, सुबह से पानी नहीं दिया इन्होंने. The fourth point is mostly publicity can be carried via newspaper, magazines, radio or television. अच्छा आप लोग न्यूज तो सारे लोग देखते होंगे, एवरीवन न्यूज, तो उसमें कई बार कुछ इंफॉर्मेशन आता है अबाउट द कंपनी, अबाउट द ब्रांड, अबाउट द प्रोडक्ट, आता है इंफॉर्मेशन, है ना. तो दैट इज अ पब्लिसिटी. बट वट एवर वी आर गेटिंग इन बिटवीन न्यूज, जैसे कुछ ब्रेक होने के बाद वट एवर वी आर वॉचिंग, दैट इज एडवर्टीजमेंट. मीन्स न्यूज वगैरह जो टेलीविजन में आना, एक फॉर्मल वे में जो आपको बेसिकली आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है. उसके बाद फिर मैगजीन्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू जो आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल रहा है अबाउट द बेसिकली प्रोडक्ट एंड ब्रांड, दैट इज पब्लिसिटी, ठीक है. बट व्हेन द होल एडवर्टीजमेंट इज एक्चुअली डिजाइन, और वो बिल्कुल स्टेटेड और बिल्कुल बोल सकते हैं ना एक बनाया हुआ रहता है, ठीक है. बट द पब्लिसिटी इज नॉट लाइक दैट, ठीक है. मैसेजेस उसमें बने हुए नहीं रहते. नाउ द next feature, company has no control. Yes Muskan, again, so according to this point we can publicity. So company has no control over the publicity in term of the messages, मतलब term messages के term में बोला जाए, टाइम के टर्म में बोला जाए, फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोला जाए, इंफॉर्मेशन और मीडियम के टर्म में बोला जाए, तो कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं. लाइक in advertisement, that is controlled by the company. Whatever amount is paid, according to that the frequency of the advertisement will be there, like 5 times 6 times within an hour, ठीक है. किस टाइम पे शो करना है, ठीक है, कौन से शोज के बीच में दिखाना है, तो all these in advertisement are already fixed. But where in the case of publicity, all these things are not fixed by the company. So we can say that company has no control over publicity in terms of messages, time, frequency, information and medium. Company has no control over publicity in terms of time, frequency, information and medium. Company has no control over publicity in terms of message, time, frequency, information and medium. यानी कितनी बार दिखाना है, कब दिखाना है, ठीक है, इसके लिए कोई कंट्रोल बेसिकली कंपनी का नहीं होता है पब्लिसिटी, ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, पब्लिसिटी कैन बी डन एज मच लोअर कॉस्ट देन एडवर्टीजमेंट. यानी जितना पैसा आप एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हो उससे कई बहुत कम पब्लिसिटी में आपका खर्च होता है, ठीक है. और कंपनी जो है बहुत कम अमाउंट एक्टिविटी, मतलब बहुत कम उसको कॉस्ट लगता है किसमें, पब्लिसिटी में. तो यू वांट टू राइट, देन यू कैन राइट नॉन पेड फॉर्म में, तो ऐसे भी ये आ ही गया. फ्रीक्वेंसी और जो रिपीटेशन होता है इस पूरे के पूरे पब्लिसिटी के लिए, जो भी आपने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट किया, जो भी आप पब्लिश करना चाह रहे हो, पब्लिकली दिखाना चाह रहे हो,
तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन होगा पब्लिसिटी का मास मीडिया में, वो डिपेंड करता है सोशल सिग्निफिकेंस का। सोशल सिग्निफिकेंस में जैसे ये भी चीजें बोल सकते हो कि यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि कई बहुत सारे वीडियो लोगों ने यूट्यूब के चैनल्स पे देखा होगा कि पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में या 2-3 फोन के कंपैरिजन वगैरह दिखाया जाता है। देखा है सब लोगों ने ये चीज? होता है ये चीज। सो दिस इज समथिंग लाइक पब्लिसिटी। यहाँ पर कई बार चीजें क्या होती है, न्यूज में जो चीजें दिखा रही है वो तो ठीक है, यूट्यूब पे जितने व्यूज बन रहे हैं, जितने ज्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं, जितने ज्यादा लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो ये सोशल इन्फ्लुएंस जितना होगा, उस चैनल का जितना डिमांड होगा, वो पर्सन जो वीडियोस बना रहा है उसका जितना डिमांड होगा, उस हिसाब से ज्यादा व्यूज बनेंगे। कुछ बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि उनको दिखाने वाला पर्सन, उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा नहीं। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि सोशल सिग्निफिकेंस पे आपका टोटली डिपेंड करता है, और उसके वैल्यू फॉर न्यूज पे, न्यूज चैनल पे पूरा डिपेंड करता है कि कितने लोग उसको देखते हैं, उस पर्टिकुलरली चैनल को कितने लोग देख रहे हैं। ये सारी चीजें बेसिकली आपके पब्लिसिटी में यही चीज देखा जाता है। फ्रीक्वेंसी और रेपिटेशन ऑफ द पब्लिसिटी इन मास मीडिया डिपेंड्स अपॉन द सोशल सिग्निफिकेंस। लिखिए, frequency or repetition of publicity in mass media, frequency or repetition of publicity in mass media, frequency or repetition of publicity in mass media depends upon its social, depends upon its social significance or the value, significance or the value for the news। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन जो है ये टोटल आपके सोशल सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और न्यूज के वैल्यू पे डिपेंड करता है, लोग कितना उसको बेसिकली लाइटली लेते हैं, कितना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी न्यूज चैनल है, कितना ज्यादा ट्रस्ट वर्दी ब्लॉग वगैरह चल रहा है, टोटली ये उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, समटाइम्स वी सी, चले, सो पब्लिसिटी क्या होता है सबको क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी, यहाँ पर कौन कौन पब्लिसिटी में क्या क्या यूज होता है, सो आप लिख सकते हो न्यूज, न्यूज वगैरह, न्यूज कवरेज वगैरह, प्रेस रिलीज, प्रोडक्ट रिलीज, वो सब चीजें तो मैंने करवाई दिया आपको बेसिकली आपके फीचर्स में। कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो सकता है, ठीक है, तो ये सारे आपके आएंगे टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी में, या फिर पब्लिसिटी के एलिमेंट्स में आएंगे। जैसे सेल्स प्रमोशन के ना कूपन, सैम्पलिंग वगैरह, वैसे पब्लिसिटी के ये सारे एलिमेंट्स है। न्यूज, फिर आपके कॉन्फ्रेंस, इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स वगैरह जितने भी हैं, ये आपके पब्लिसिटी के क्या है, एलिमेंट्स है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज लो कॉस्ट। ऑब्वियसली लो कॉस्ट, कम पैसा लगता है कंपैरिजन टू द एडवर्टीजमेंट, वी जस्ट नीड टू पे द लो कॉस्ट। Second one is like it is something which is not the artificial one, ठीक है, पब्लिसिटी कभी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होता कि एडवर्टीजमेंट की तरह वो प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ हो। सो दैट इज बेसिकली कस्टमर जो है वो प्रॉपरली इस पे बिलीव कर सकते हैं, लाइक समथिंग विच इज इन द न्यूज वी कैन बिलीव ऑन दैट। So it ensure the credibility, we can say that it ensure the credibility, it ensure the credibility, and if something which is मतलब publicity अगर continuous way में है, means if the publicity is in the continuous way, that is going to strengthen the brand as well, right? So you can write that the consistent publicity helps a company to strengthen its brand, यानी ब्रांड को मजबूत करने के लिए कंसिस्टेंट अगर पब्लिसिटी चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को, एक कंपनी को बोल सकते हैं गुडविल भी इंक्रीज करेगा, और कस्टमर उसको वर्थ भी समझेगा, वॉट एवर प्रोडक्ट इज ही और शी इज परचेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट ये इट हेल्प टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स एज वेल, ठीक है, इट ओपन्स डोर्स एंड गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प द बिल्ड रिलेशनशिप विथ मोर एंड मोर, वो बोल सकते हैं कंपनीज, फिर कस्टमर्स। इट हेल्प्स यू टू गो वायरल, it helps you to go viral, it helps you to go viral, yani the news will be spread within a minute, like a forest fire, it will very much मतलब एक viral way में मतलब basically बोल सकते हैं कि बिल्कुल तुरंत से it will spread। ads don't go viral, ads कभी भी viral अपने आप नहीं होते, लेकिन publicity is something which can viral easily, ठीक है। word of mouth वगैरह जो है वो भी publicity के लिए बहुत useful है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ इज अ सक्सेसफुल टूल इन दैट, लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, फिर लोग एक दूसरे को बताते हैं, लोग एक दूसरे को वीडियोस, न्यूज वगैरह के लिए बताते हैं, लोग इसके इंफॉर्मेशन को देखते हैं, तो समथिंग लाइक इट
it helps company to go viral. What are the disadvantages of publicity? As it's go viral, लोग इसके बारे में जल्दी से जल्दी जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में, तो ये प्रोडक्टिव भी है, एडवांटेजियस भी है, बेनिफिशियल भी है, उतना ही ये डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि जितनी जल्दी आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं ना कि गुड थिंग्स जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, उतनी ही जल्दी जो अगर कोई भी निगेटिव चीजें होंगी वो भी उतनी ही स्पीड में स्प्रेड होंगी. तो डैमेज द ब्रांड इक्विटी, publicity can damage the brand equity in long term in case of bad publicity. Damage brand equity in long term in case of bad publicity in case of bad publicity. ठीक है, इन केस ऑफ बैड पब्लिसिटी, जैसे मैगी का पब्लिसिटी हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, राइट. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रांड इक्विटी जो है, मतलब ब्रांड इक्विटी को डैमेज कर सकता है, आपके ब्रांड के वैल्यू को डैमेज कर सकता है. कौन? बेसिकली आपका पब्लिसिटी, अगर पब्लिसिटी निगेटिव वे में हो गया, like if the product quality is not good and if we are making the videos on that and the people understand that this product is not right, so in that way your product डिमांड विल बी डिक्रीज, राइट. जितना सेल्स को इंक्रीज करने में पब्लिसिटी हेल्प करता है, उतना ही डिक्रीज करने में भी हेल्प कर देगा, मतलब एक तरीके से लॉस कर सकता है. नेक्स्ट लॉस ऑफ ट्रस्ट भी पॉसिबल है, बिकॉज इफ द कंज्यूमर फील चीटेड, अगर कंज्यूमर को लगेगा कि वो चीटेड फील कर रहा है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो फिर ट्रस्ट ना. चलिए, सो ट्रस्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे इन एडवर्टीजमेंट द कंपनी ऑलवेज शो द पॉजिटिव साइड ऑफ द प्रोडक्ट, हमेशा पॉजिटिव साइड आपको प्रोडक्ट का शो करेगा, क्योंकि वो डिजाइंड होता है, उसके लिए आपने अमाउंट खर्च किया है, तो हमेशा एडवर्टीजमेंट आपके यहाँ की पॉजिटिविटी दिखाएगा. बट पब्लिसिटी इज समथिंग विच इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट थिंग, ठीक है, जो आपको बेसिकली आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में रियलिटी शो करेगा. तो कई बार हो सकता है कि ट्रस्ट इसलिए लूज हो जाए, कस्टमर इसलिए आपके प्रोडक्ट को ना परचेज करे, बिकॉज advertisement से they are attracted for purchasing the product, but when they are using it and when they saw in so many news channels and so many blogs and so many newspaper about the product that whatever is showing in the advertisement is not right, then ये वाला trust issue create हो सकता है. किसके किसके कौन, मतलब बेसिकली कौन इफेक्ट होगा इससे? कंज्यूमर्स की. बेसिकली वो ट्रस्ट करना बंद कर देंगे. So publicity is something, मतलब sometime publicity is exaggerated as well. मतलब कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे न्यूज होते हैं जो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट यानी खिंच जाते हैं, जो बल्कि उतना नहीं होता है रियल में. तो पब्लिसिटी कैन ऑल्सो इम्पैक्ट निगेटिवली ऑन द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट. तो ये थे आपके पब्लिसिटी के एडवांटेजेस एंड पब्लिसिटी के डिसएडवांटेजेस. कोई डाउट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में? जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे मूवीज का मैंने बताया था, जैसे मूवी रिलीज होने वाला होता है, ठीक है, तो उसके टाइम पे आपके ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूमर्स वो सिनेमा हॉल विजिट करे, ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग वो मूवी देखें, खासकर वो मूवी देखें, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग मूवी देखेंगे उतना ज्यादा अर्निंग होता है. पर्टिकुलर किसका किसका अर्निंग होगा इसमें? मूवी बना, यहाँ पर उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, इंक्रीज होगी. तो इसीलिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, मूवी कास्ट, क्रू वगैरह जो होते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है. अपने आप ही वो, जैसे मेरे कॉलेज में भी when I was in my college, Varun Dhawan and Yami Gautam visited, right? Why? Because for publicity, publicity about their new movies Badlapur, ठीक है. So this is one of the example of publicity. Clear हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए, पब्लिक रिलेशंस क्या होता है? बेसिकली पब्लिक रिलेशन में ही पब्लिसिटी आता है, ठीक है. बट पब्लिक रिलेशनशिप ना एक अप्रोच होता है, उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाई जाती हैं ताकि आप कंज्यूमर्स को जैसे क्या कर सको, कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सको. सिर्फ कंज्यूमर ही क्यों, आप यहाँ पर बाकी दूसरे कंपनीज हो सकते हैं, आपके सप्लायर हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, उनके साथ यू विल ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशनशिप फॉर बेसिकली इम्प्रूविंग द ब्रांड इमेज, ठीक है. तो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन क्या होता है उसमें, चलिए, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक रिलेशन? सो पब्लिक रिलेशन जो है इसमें लिखिए, पब्लिक रिलेशन इज अ comprehensive term
public relation is the comprehensive term that includes maintaining constructive relationship. Public relationship is a comprehensive term that includes maintaining constructive relations not only with the customers, suppliers, not only with the customers, suppliers and middlemen, but also with the large interest of public, आगे लिखिए, यानी कि जो पब्लिक रिलेशन है सिर्फ ये कंपनी इसलिए बिल्ड नहीं करती कि उनको कस्टमर्स जो है उनके उन्हीं के साथ बिल्ड करेंगे, कंपनीज बाकी जो मिडिल मैन है जो बेसिकली पूरे मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है सिर्फ उनके साथ, बल्कि इन लार्ज पब्लिक के साथ, मतलब दे वांट टू मेंटेन द रिलेशन विद द लार्ज पब्लिक, ठीक है, मतलब पूरी कम्युनिटी में जितने लोग हैं सबके साथ, पूरे सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके साथ, राइट। पब्लिक रिलेशनशिप जो है, पब्लिक रिलेशंस जो है दैट इंक्लूड्स पब्लिसिटी व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड द पब्लिसिटी जो है इज द, मतलब पब्लिसिटी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन जो है विलियम स्टैंटन ने इसको डिफाइन किया था, लाइक पब्लिसिटी की तरह पब्लिक रिलेशन भी डिफाइन किया गया है। यू वांट टू राइट डेफिनेशन और नॉट, लिखना है डेफिनेशन? यस मैम। तो पब्लिक रिलेशन, लेकिन मैं डेफिनेशन एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन एक ऐसे एक्टिविटीज है जिसको डिजाइन किया जाता है, स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, मेंटेन किया जाता है एक फेवरेबल इमेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द फेवरेबल रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन विद द वेरियस पब्लिक। यानी इसमें क्या होता है कि पब्लिक के साथ हाउ यू विल मेक द स्ट्रैटेजी, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करोगे, उसको हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो पब्लिसिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। दीज पब्लिक कोई भी हो सकते हैं, पब्लिक में आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, यूनियंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं, आपके पीपल हो सकते हैं, लोकल कम्युनिटी हो सकता है, एवरीवन, like the public consists each and every people, either that they are the part of unions, government हो गए, stock holders हो गए, employees हो गए, एंड कुछ रिलेशन जो CRM होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बट वहां पर हम लॉयलिटी के लिए बेसिकली कुछ कस्टमर्स लॉयल होंगे, उनको स्पेशल इंसेंटिव वगैरह देते हैं, है ना। यहाँ पर सबकी बात हो रही है, सारे पब्लिक की, ठीक है। इसीलिए द पब्लिक रिलेशन जो है इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजेशंस ब्रॉड एंड ओवरऑल कम्युनिकेशन एफर्ट है, ठीक है। और इसमें आपका कह सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह भी इसमें हायर किए जाते हैं फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक रिलेशन। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख लीजिए, डेफिनेशंस तो नहीं लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए। पब्लिक रिलेशंस इज अ पेड फॉर्म, ये एक पेड फॉर्म होता है, एक मार्केट प्रमोशन है, लाइक पब्लिसिटी जो है, पब्लिसिटी इज नॉट इन द पेड फॉर्म बट दिस वन इज इन द पेड फॉर्म। पब्लिक रिलेशन इज अ पेड फॉर्म ऑफ मार्केट प्रमोशन, पेड फॉर्म ऑफ मार्केट प्रमोशन, ठीक है। कंपनी हैज टू इनकर द एक्सपेंसेस, व्हाई? बिकॉज द पब्लिक रिलेशन इज अ paid form of market promotion. It is not like the publicity that we don't need to pay amount, but in this case we just need to pay the amount. आगे लिखिए, public, second point, public relations, first point completed, yes, second point, public relations activities are designed to build and maintain is designed to build and maintain a favorable image for an organization and with organization, मतलब organization various publics, favorable relationship with organizations various public, यानी कि एक favorable image बनाने के लिए इसको build किया जाता है, एक्टिविटीज को लाया जा सकता है। और ये एक इंटीग्रल मैनेजरियल फंक्शन है, दिस इज द इंटीग्रल मैनेजरियल फंक्शन, मींस यहाँ पर मैनेजर्स वगैरह जो है, मतलब एक मैनेजरियल फंक्शन है ये। साथ साथ में जो कंपनी है इसको ऑपरेट करती है डिपार्टमेंट वाइज वगैरह, मार्केटिंग सेल्स के टीम्स वगैरह लग जाती हैं इसके लिए, पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या हो सकता है पब्लिक रिलेशंस के लिए, जैसे इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कराना, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स सो मेनी नंबर ऑफ इंटरेक्शन, क्या कौन से, थर्ड पॉइंट लिखिए, इंटीग्रल वाला लिख लिया ना सबने। It is an integral function of it is an integral part of the managerial function. It is the integral part of the managerial function. ठीक है।
और मेनी कंपनीज हैव इवन स्पेशल डिपार्टमेंट, एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट, या कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट जो है स्पेशली इसके लिए बनाया गया है, इसके लिए पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए. So in so many companies there is a separate department for making public relation and for बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे आप क्या इन्वॉल्व कर सकती है, स्पेशली ये डिपार्टमेंट कराता है. कौन सा डिपार्टमेंट? पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट. पब्लिक रिलेशन department. So matlab there are some exclusive and different departments are also made for this public relation, for doing the activities of public relation. Next अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी फॉर पब्लिक रिलेशन? इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ इंटरेक्शन. इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन, बहुत सारे इंटरेक्शन, सच एज कॉन्टैक्टिंग हो गया, इनवाइटिंग हो गया, इन्फॉर्मिंग हो गया, ठीक है, डीलिंग हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया. इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ इंटरेक्शन, बहुत सारे इंटरेक्शन सच एज कॉन्टैक्टिंग, इनवाइटिंग, इन्फॉर्मिंग, ठीक है. तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरेक्शन. मतलब यहाँ पर ये सारा इंटरेक्शन जो है पब्लिक रिलेशन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपके. इनवाइट करना किसी को, इन्फॉर्म करना, बताना किसी को. इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है? जैसे कि कभी भी आपके यहाँ पर कोई ऑफर आया, कुछ चेंजेस आया, तो आपने उनको इन्फॉर्म किया, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन. सी, पब्लिक रिलेशन इज वाइड टर्म. Publicity is the part of public relation. So everything comes under that. Like when you will contact with the employees, when you will contact with the customers, when you will contact with the public, when you are giving the information, when you are clarifying the different policies, okay, when you are dealing, when you are doing transaction, in each and everything, what the company want to basically maintain the public relation. Next, पब्लिक रिलेशंस कवर करती है नंबर ऑफ बेसिकली चीजें, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स दोनों होते हैं. जो पब्लिक होते हैं वो कस्टमर्स, स्टॉक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, यूनियन, एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह सब होंगे इसमें, ठीक है. पब्लिक रिलेशन जो है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी. ऐसा नहीं कि आज हमने पब्लिक रिलेशंस के लिए स्ट्रैटेजी डिजाइन किया एंड बाद में उसको स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया. लाइक सेल्स प्रमोशन, दैट वाज अ टेम्पररी थिंग, but public relation is the activities under the public relation will be in the continuous way, ठीक है. and even new strategies are adopting by the companies, ठीक है. एक continuous way है और एक routine activities है. और इसमें जो बेसिकली पब्लिक रिलेशंस को कौन परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज बेसिकली एंड व्हाट द पॉलिसीज जो बनते हैं, दैट इज बेसिकली फॉर्म बाय द टॉप लेवल. तो ऑल द ऑफिशियल्स फ्रॉम द टॉप लेवल टू द सुपरवाइजरी लेवल, यानी कि टॉप लेवल, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द फाइनल वन इज द लोअर लेवल, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल. ऑल द पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज और जो भी चीजें हैं सब कुछ किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? बेसिकली टॉप ऑफिशियल्स के द्वारा, यानी टॉप लेवल जो है वो पब्लिक रिलेशन के वर्क को देखते हैं, ठीक है. तो ये आपके थे पब्लिक रिलेशन. क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? मैसेजेस आते रहते हैं तो वो भी एक टाइप का पीआर ही हो गया ना, कि वो मतलब कॉन्टिन्यूअस एक रिलेशन बिल्ड करते हैं. They are attracting the consumers by using the thing that today you are hungry, why you are waiting, Yes, for what you are waiting for, right? This kind of question Yes, is coming. Today's Wednesday dosa day and something like this, right? Dinner क्या And है? they are, हाँ, dinner में क्या है, something. So this kind of thing where they are basically बोल सकते हैं ना कि they are affecting the emotions of the people. Like ठीक है, चलो आज अच्छा, मतलब they are basically showing the care. That is also a part of the PR. Whatever the company is using for attracting the consumer and for making the contact with the consumers and other people as well, मीन्स पब्लिक में और बाकी भी जो सब आएंगे, सब कुछ इसमें PR में ही आएगा, पब्लिक रिलेशंस में, ठीक है. इफ यू आर शोइंग केयर अबाउट, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या हार्मफुल चीजें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, एवरीथिंग कम्स अंडर द PR, ठीक है. सो पब्लिक रिलेशन का मतलब ही यही होता है कि लॉन्ग टर्म में, मतलब हर एक कोई, यानी कि कोई भी जॉब का हो, कोई भी सेक्टर का हो, कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का, इट डजंट मैटर, वी हैव टू बिल्ड दैट एटमोस्फेयर वेयर वी कैन इजिली प्रमोट द ब्रांड एंड प्रोडक्ट, ठीक है. तो यहाँ पब्लिक रिलेशन जहां पर हम भी हैं, तो हमारे लॉन्ग टर्म में दे विल बिकम द कंज्यूमर, राइट. रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है ताकि फेवर हमें मिले बाद में, जैसे कंज्यूमर्स हमारे बन जाएं, परचेज करें बार बार प्रोडक्ट, ठीक है. और ये एक, और पब्लिसिटी जो होता है ना, वो भी
फेवर के लिए होता है, बट इन दैट केस समथिंग मतलब कुछ हो जाता है निगेटिव वे में भी, और उसके लिए डिजाइनिंग वगैरह करते हैं पब्लिक रिलेशंस के लिए, नए नए स्कीम्स लेकर आते हैं, नए नए स्कीम्स लेकर आ गए। तो ये सारी चीजें आपकी पब्लिक रिलेशन के लिए होगा, पब्लिक रिलेशन बिल्ड कर मतलब एक बिल्ड करना बनाना। अब पब्लिसिटी इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द हैंड ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, ठीक है। तो पब्लिश एनी हाउ, बट द पब्लिसिटी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन फ्रॉम दैट। So who is going to tell me, who is going to give me a small introduction of Tanishq? What we तनिष्क hmm. तनिष्क इंडियन मार्केट में 1984 में आया था, और जिस मोमेंट पे आया, चलिए तनिष्क इंडियन मार्केट में 1995 में आया, और जिस मोमेंट पे आया उस मोमेंट पे जितने भी ज्वेलर्स यहाँ इंडिया में थे वो सब ट्रेडिशनल ज्वेलरी बना रहे थे, और तनिष्क लाया था प्योरली यूरोपियन ज्वेलरी, जो वेस्टर्न कल्चर्स के ज्वेलरी थे उनको लेकर आया था। तो उस समय इंडियन के ऐसे बिहेवियर, ऐसा नेचर नहीं था कि तुरंत बाहरी चीज को अडेप्ट कर ले, और इस कारण से स्टार्टिंग में तनिष्क का 3 साल बहुत फाइनेंशियल ईयर बहुत लो रहा, उसको बिल्कुल भी सेल्स नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ। बट धीरे धीरे तनिष्क ने समझा कि हमारे में क्या डिफेक्ट है, तो उन डिफेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहा, तो अपने यूरोपियन ज्वेलरी में ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी को मिक्स किया। फिर हर इंडिया में 28 स्टेट्स है, तो हर स्टेट के हिसाब से, हर स्टेट में जो रिलीजन्स है उन रिलीजन के हिसाब से अलग अलग ज्वेलरी का एक सेट तैयार किया, और उसको प्रमोट किया ताकि लोग अपने इंटरेस्ट दिखा। लाइक पंजाबी के लिए पूरा पंजाबी वेडिंग सेट, तमिल के लिए तमिल वेडिंग सेट, यूपी के लिए उनके टाइप का वेडिंग सेट, महाराष्ट्र के लिए मराठी वेडिंग सेट। तो इससे इनका प्रमोशन हुआ, और उस मोमेंट पे बाकी सबके ज्वेलरी 22 कैरेट और 24 कैरेट के होते थे, इन्होंने थोड़े कम कैरेट का ज्वेलरी बनाया, जिसमें गोल्ड के साथ और भी मिक्सचर या अलॉय मिलाकर बनाया, तो 18 कैरेट में बेच रहे थे, तो थोड़ा कम एक्सपेंसिव था। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यूरोपियन स्टाइल भी अच्छी बात है, और हम लोग अब के जनरेशन में तो वेस्टर्न कल्चर अपनाना ही चाहते हैं, तो उन सारी ज्वेलरी को पसंद भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता गया। And they focused on regional consumers of India, so they were very they wanted to reach every corner of India, so they actually adapt to their culture and tradition. For example, in the south region of India, they innovate the product according to their taste and standard, and in the north they did something different. So they focus mainly on the regional differences and how they can adapt to different markets. So that's how they do it, like innovating Very and good. adapting. Yes, Ashish. Yes, Ashish. Yes, ma'am. मैम फर्स्ट एक मार्केट प्लान बनाया, सेकेंडली एक इजी टू कैरी था मींस आफ्टर, और उसके बाद फिर ट्रेडिशनल डिजाइन को चेंज किया गया, उसके बाद फिर दे फोकस ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट, देन दे चेंज द 18 कैरेट टू द 24 कैरेट ऑर्नामेंट्स, आफ्टर दैट डिफरेंट डिजाइन फॉर डिफरेंट रीजन, एंड देन टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द डिजाइनर, और कैरेट मीटर को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि जर्मनी Very good. Very good. So all these strategies are used basically. What kind of strategy? First of all, who is going to tell me the problems? What are the basic problems? Why they basically faces 3 years consecutively they get the losses. 3 years they were in a very extreme loss situation. Their financial statements was like बहुत ही ज़्यादा extreme loss था. What is the reason behind it? Why they are facing such problems? Who is going to tell me? Raise your hand. Only problems. मैम एक तो वो मतलब वेस्टर्न डिजाइन को ले आ रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम के लोग जो ट्रेडिशनल उस पे जा रहे थे वो कल्चर के हिसाब से ज्वेलरी लेते थे, तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको अडेप्ट नहीं कर पाए। दूसरा वो उस टाइम के लोग 24 और 22 कैरेट के गोल्ड यूज कर रहे थे, और ये 18 कैरेट के गोल्ड के साथ है, तो इस वजह से भी मतलब लोग इसको ये ले नहीं पा रहे थे। Completed? Yes, ma'am. Okay, good. But at that time, the people were dependent upon the small retailers. There were no organized jewelry shop, right? कोई organized jewelry shop नहीं था, एक दो को छोड़कर, जैसे त्रिभुवन दास and मेहरा सन्स, एक दो जो थे, they were organized कुछ jewelry shops थे, stores थे, otherwise ज्यादातर सब informal और unorganized थे.
और लोग जो थे दे आर बेसिकली ट्रस्ट दूज पीपल बिकॉज दिस इज द एक्सपेंसिव थिंग, राइट? तो ये एक्सपेंसिव भी था एंड दैट इज रिलेटेड विद द कल्चर एज वेल एज इमोशंस एंड द इम्पोर्टेंस इज फॉर द मैरिज. सो ज्यादातर जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, आसपास के ही ज्वेलरी शॉप या फिर उनके जो फैमिली ज्वेलर्स थे उनसे ही वो क्या करते थे, ज्वेलरी बनवाते थे. तो ऐसे केस में अपना एक इमेज, अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट. उसके साथ साथ व्हाट दे कम विथ दैट इज द यूरोपियन स्टाइल. And in 1995, the people, even आज भी I am giving the example that the Indian people in the case of gold jewelry, they're dependent on the traditional designs, right? Because tradition is something which is related with the culture, custom. तो उस समय जब वो यूरोपियन स्टाइल का ज्वेलरी लेकर आया और वो भी 18 कैरेट, जो कि 75% जिसमें सिर्फ गोल्ड अवेलेबल था, जिसकी वजह से पीपल दे डोंट वांट टू बेसिकली परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द स्टाइल एंड बिकॉज ऑफ द purity. And the third problem that their focus is more on the export. In starting, they basically focuses on export, not on the local markets. And later on, they adopted the local market strategy, or we can say that they are making the specific different gold jewelry and the gold jewelry and all type of jewelry, whatever they are making, they are basically on the regional basis. Like in South, अभी भी देखना आप लोग, वहां पर आइडल्स बने होते हैं बहुत सारी ज्वेलरी में. सो फिर पोल्की ज्वेलरीज, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ज्वेलरीज. तो ये अलग अलग जो स्टेट, अलग अलग रीजन के डिमांड के हिसाब से उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट को क्या किया, बेसिकली बनाना शुरू किया. ठीक है. एंड एक चीज और भी किया उन्होंने कि उन्होंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी को भी लेकर वो आए. मतलब उन्होंने जो वेस्टर्न ज्वेलरी था उसके साथ साथ, मतलब वेस्टर्न को उन्होंने बहुत कम कर दिया और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ट्रेडिशनल सेल करना. और साथ साथ दे फोकस्ड ऑन द रिटेलर एज वेल. व्हाट काइंड ऑफ फोकस, लाइक रिटेलर्स जो थे उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. दे गेव देम इंडिपेंडेंस दैट व्हाटएवर जो भी आपका ज्वेलरी ज्यादा सेल हो रहा है, जो भी आपका डिजाइन ज्यादा सेल हो रहा है, you can purchase those product only. So by this the company also understand that what is the preference and what designs are basically preferred by the consumers at that time. ठीक है. So this is the something strategy. And carrot meter they basically exported it from the Germany. ठीक है. जर्मनी से उन्होंने इसको एक्सपोर्ट करवाया. एंड यहाँ पर जब वो आया तो इट कॉस्ट अराउंड 10 लाख. मतलब एक कैरेट मीटर का उस टाइम पे इतना एक्सपेंसिव था, बट स्टिल बिकॉज प्योरिटी चेक करने के लिए बहुत ही बेटर टेक्नोलॉजी को यूज किया, तो ये भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज बिल्ड किया. किसने? कैरेट मीटर ने. ठीक है. So all these strategy is finally helpful for Tanishq, and nowadays Tanishq is the one of the reputed brand of the jewelry, right? And one of the trustworthy as well. Trustworthy jewelry brand है अभी के टाइम पे, है ना. और there are so many outlets are present even in Patna. I think there are so many outlets. One outlet is in Jagdevput and one is in the Fraser Road, and I guess 1-2 is also available. मतलब 3-4 होंगे. मतलब I have only information about 2 and I don't have any idea कि और कितने हैं, but there are one is also in Boring Road. Tanishq is also in Boring Road. So 2-3, so we know about it. So nowadays that is one of the reputed jewelry brand.